God bless you, students. Hope so you all are fine. Uh, uh, Today we will start the chapter number 5, the halogens and the noble gases. This chapter is important for on the point of view of board examination. Is important for a short question as well as MCQs. So I will decided to discuss here only a short question. Let's start now. First short question. Give reason why fluorine is a gas, iodine is a solid. You know that in our group, fluorine, chlorine, bromine and iodine. First member in our group, in our 17 groups, first member is a fluorine. The size of fluorine is smaller as compared to the iodine. Top to bottom, number of shell increases. So the number of shell increase, the polarizability also increases. Stronger London forces. So the small size of fluorine, low polarizability and hence weak van der Waals forces. As compared to iodine, large size, greater polarizability and strong London forces make it solid. Move to the next question. Halogens are strong oxidizing agent. Justify. Why halogens family are a strong oxidizing agent? Because all halogens have a positive values of reduction potential, they have tendency to accept electron. They just accept electron. All the halogen family members, the outermost shells are deficient for a one electron. It's mean in the valence shell they contain 7 electrons. So they accept the electrons from the other elements, other metals. ठीक है. They can remove electrons from other elements and oxidize them to positive ions. ठीक है. दूसरे elements में से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं और खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं. इट्स मीन उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज. जैसे हमारे पास सोडियम प्लस F2, ये दोनों रिएक्ट करें तो हमारे पास सोडियम फ्लोराइड बनाएंगे. तो इट्स मीन सोडियम के ऑटोमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मौजूद है जो फ्लोरीन ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है. तो वहाँ पर हमारे पास क्या हो गया है कि सोडियम पर ऑक्सीडेशन हो रही है और रिडक्शन कहाँ पर हो रही है, हमारे पास फ्लोरीन पर हो रही है. हैंस जस्टिफाई दैट फ्लोरीन is greater than chlorine, chlorine is greater than bromine, and at the end is iodine. Oxidation power of the halogens is as follow. Next question, why oxidizing power of fluorine is higher than other halogen? Because they have a small size. The size of the fluorine is a small, so they all the free halogens act as oxidizing agent when they react with metals or non-metals. The reactant element acquires positive oxidation state in the compounds formed. On forming ionic compounds with metals, the halogen gain electrons and are converted into a negative halide ions. ठीक है, ये तो बात वही पुरानी कर दी है. Oxidizing power of halogen decreases with increase in atomic number. ठीक है, टॉप टू बॉटम जो सबसे पहले मैंने कहा है कि इसका स्मॉल साइज है, इसका मतलब टॉप टू बॉटम हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है. फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन एंड आयोडीन. इट्स मीन फ्लोरीन का हमारे पास 9 है, क्लोरीन का 35, उससे अबव, फिर उससे अबव, मतलब टॉप टू बॉटम हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से उसका साइज़ भी हमारे पास इंक्रीज हो रहा है. इस वजह से हमारे पास जो सी है ऑक्सीडेशन पावर है वो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स मेंबर. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पर क्लोरिक एसिड इज कंसीडर्ड एज अ वैल्यूएबल एनालिटिकल रिएजेंट. वाई? बिकॉज एनालिटिकल मीन है कि ये हमारे पास कहाँ कहाँ पर एनालिसिस के तौर पर कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है. ये हमारे पास यूज़ हो रहा है एज अ ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट डिटरमिन करने के लिए, एसिड स्ट्रेंथ डिटरमिन करने के लिए, सोलिबिलिटी ऑफ इट्स सॉल्ट्स. ठीक है, 3 पॉइंट्स पर ये यूज़ हो रहा है. तो जिस वजह से हम इसको एनालिटिकल रिएजेंट कहते हैं. क्या है? ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट, एसिड स्ट्रेंथ और सोलिबिलिटी ऑफ इट्स सॉल्ट. वाई
आयोडीन हैज़ मेटेलिक लस्टर, यहाँ पर आयोडीन आएगा, ठीक है, इस वर्ड को आप सही कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 में आयोडीन हैज़ मेटेलिक लस्टर because going down the group the size of the atom increases due to shielding effect. Net interaction between the nucleus and the outermost electron decrease, so the electrons on the surface of the iodine may become excited by absorbing heat energy from light, and when they release their energy and come to their normal state, they emit this light, so it appears दैट दे हैव अ लस्ट्रस सरफेस, ठीक है, शाइनिंग सरफेस इसकी होती है। क्यों? क्योंकि हम टॉप टू बॉटम जैसे जैसे आते हैं तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से शेल इंक्रीज हो रहे हैं। जितने शेल इंक्रीज होंगे उतना ही ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट जो सा होगा वो हमारे पास बढ़ता जाएगा। इट्स मीन कि इनर जो से इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका न्यूक्लियस के साथ इंट्रैक्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑटोमोस्ट शेल, ठीक है, जो सबसे बाहर वाला शेल वैलेंस शेल है, उसका इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में मौजूद है। उसको थोड़ी सी भी हीट मिलेगी वो उस हीट को अब्जॉर्ब करेगा, एक्साइटेड स्टेट पर जाएगा और देन वो क्या हो जाएगा, अपने नॉर्मल स्टेट पर आ जाएगा। जब वो एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट पर आएगा तो वहाँ पर जो सी एक रोशनी प्रोड्यूस होगी, लाइट प्रोड्यूस होगी, उस वजह से ये हमारे पास किसके तौर पर एक्ट करता है, लस्ट्रस सरफेस के तौर पर एक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, HF इज़ अ वीक एसिड वाई, ठीक है। अब हमारे पास अगर आपने देखा हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हमने कही की, ठीक है। HF हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान में तो कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है ना, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ HF मॉलिक्यूल्स के दरमियान में क्या बनता है, उनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, फ्लोरीन हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। अब क्या हो रहा है, इन हाइड्रोजन फ्लोराइड ईच हाइड्रोजन एटम इज इंट्रॉप्ड बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम्स। मैंने आपको बता दिया कि फ्लोरीन हमारे पास क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एक हाइड्रोजन जो है वो दो फ्लोरीन के दरमियान में होता है, एक के साथ वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ और एक फ्लोरीन के साथ वो क्या है, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू वो अटैच है टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम एंड इट इज़ नॉट ईजिली आयनाइज्ड इन वाटर। ये वाटर में जल्दी अपने आयंस प्रोड्यूस नहीं करती, जिसकी वजह से ये हमारे पास क्या है, वीक एसिड के तौर पर एक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन विद हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH जब क्लोरीन के साथ मिलेगा तो NaCl बना देगा और साथ में NaClO3 और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। हाउ द हेलोजन्स राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ अ HF। हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अ कलरलेस volatile liquid at room temperature. It gives fumes in moist air, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। ये स्ट्रॉन्ग इरिटेंट है। HF acts glass and has found application as a non-aqueous solvents, ठीक है। आपने ये 8 क्वेश्चंस अच्छी तरीके से कर लेने, आप चाहे इसे राइट अप कर लें अपनी कॉपीज़ पर, तो जो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम हो कहीं पर भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।